Today, the topic I want to talk to you is recognizing the time of your visitation. आज जिस विषय के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है अपने मुलाकात के समय को पहचानना। If you read the verse 44 and the last line, you see Jesus said, because you did not know the time of your visitation. अगर आप 44 आयत को पढ़ेंगे उसकी आखिरी बात ये कहती है क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। So my friends, सो मेरे प्रियो, what is happening on Palm Sunday? खजूर के एतवार पे क्या हो रहा है? Obviously, we know people are welcoming Jesus and praising Jesus and taking the palm leaves and shouting Hosanna. जी हाँ, हम इस बात को जानते हैं कि खजूर के एतवार के दिन लोग खजूर की डालियों को लेकर और वस्त्र और कपड़ों को लेकर यीशु मसीह का स्वागत कर रहे हैं, होसैना गा रहे हैं। We see the celebration outside, हम देखते हैं बाहर उत्सव हो रहा है, but we also see the sorrow inside. लेकिन हम भीतर एक शोक देख रहे हैं, एक विलाप देखते हैं। On the outside, it looked like a victory, और बाहर की तरफ से एक जय की तरह दिख रहा है, but on the inside, it was a tragedy. लेकिन अंदरूनी एक घटना घट रही है। People were shouting Hosanna, लोग चिल्ला रहे थे होसैना, Hosanna. होसैना। Palm branches were waving. खजूर की डालियों को लहराया जा रहा था, Garments were laid on the road, और कपड़ों को मार्ग पर बिछाया जा रहा था, and they were celebrating the coming of Jesus. और वो यीशु मसीह के प्रवेश का स्वागत कर रहे थे। But in the middle of all this, लेकिन इन सब बातों के बीच में Jesus was crying. यीशु रो रहा था, He was weeping. वो विलाप कर रहा था। We need to understand while they were celebrating a moment, they were missing what God was really doing in that particular time. क्या हम इस बात को समझते हैं कि जब इस उत्सव के बीच में वो उस क्षण को खो रहे थे जो परमेश्वर उनके बीच में कर रहा था। Sometimes you can be in the right place at the right time कई बार हो सकता है आप सही समय और सही जगह पर हो and still miss what God is और doing. तब भी वो खो दें जो परमेश्वर कर रहा होगा। There are 5 things, there are maybe not 5, maybe 10 things that I want to talk to you and then we'll finish it. और हो सकता है 10 बातें मैं आपके साथ आज के अपने विषय में करूं, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। Number 1, सबसे पहली बात, the danger of wrong expectations. और गलत उम्मीदों का खतरा। The danger of wrong expectations. गलत उम्मीदों का खतरा। The people were not ignorant when they welcomed Jesus. जब लोगों ने यीशु का स्वागत किया वो न अनजान नहीं थे उस बात से, They knew who Jesus वो was. जानते थे कि यीशु कौन है, They have heard about him. उसके बारे में उन्होंने सुना था, They saw the miracles he performed. जो अद्भुत काम उसने किए उन्होंने देखे थे। So they were not ignorant of Jesus. तो यीशु से वो अनजान बिल्कुल नहीं थे, It's just they had the wrong expectations. बस बात ये थी कि उनकी उम्मीद एक गलत थी यीशु से। That is what happens with us sometimes. कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। They knew about the Messiah, वो मसीहा के बारे में जानते थे, but they misunderstood him. लेकिन उन्होंने उसे गलत समझ लिया। How? कैसे? What happened there? कैसे क्या हुआ वहां पे? Actually, और असलियत में they were expecting a powerful king. वो एक ताकतवर राजा की उम्मीद में बैठे थे, They were expecting a political leader. वो एक राजनीतिक नेता की उम्मीद कर रहे थे। They were thinking someone like a king will come on a horse and will defeat Caesar and will take over the Roman government. उनकी उम्मीद ये थी कि कोई ताकतवर राजा घोड़े पे सवार होकर आएगा और रोमी सरकार और राजा को मारकर हटाकर वो राज करने लग जाएगा। But it wasn't happening the way they were expecting. लेकिन जैसे उनकी उम्मीद थी वैसे बिल्कुल नहीं हो रहा था। They thought Jesus will come on a horse. उनको लगा यीशु घोड़े पे सवार होकर आएगा, The king will come like a majestic one. वो राजा एक महिमा से भरा हुआ राजा बनकर आएगा। But now they see Jesus coming as a humble man, लेकिन अब वो यीशु को देखते हैं कि बड़ी नम्रता और दीनता में वो आ रहा है, coming as a gentle king. एक मासूम राजा के समान आ रहा है। Rather than horse, is coming on a donkey. घोड़े के बजाय गधे पे सवार होकर वो आ रहा है। And because he did not come the way they expected, they failed to recognize him. और क्योंकि जैसे उनकी उम्मीद थी वो वैसे नहीं आया, इसलिए उसे पहचानने से वो चूक गए। This is why it happens like this. और इसीलिए ऐसा होता है, When God does not match your expectation, you may reject what he is doing. जब पर आपकी जो उम्मीद होती है परमेश्वर वो नहीं करता, तो जो वो कर रहा होगा आप उससे चूक जाएंगे। So who are we today? तो आज हम कौन हैं? We are the same crowd. हम आज वही भीड़ हैं, The same crowd like वही the भीड़। one
on that day in Jerusalem. और उस भीड़ के समान जो भीड़ यरूशलेम में थी उस दिन We come to church, हम कलीसिया आते हैं, we read the Bible, बाइबल पढ़ते हैं, we fast and pray, उपवास और प्रार्थना हम कर रहे हैं, and we have certain expectation in our heart. और हमारे दिलों में कुछ उम्मीदें हैं। We think God will do this thing in my way. हमें लगता है परमेश्वर हमारे तरीके से, मेरे तरीके से इसे करेगा। In your marriage, आपकी शादी में, in your children, आपके बच्चों के जीवन in your में, family, आपके परिवार में, in your job, आपकी नौकरी में, in different parts of your life, you think God will do the way I'm expecting it to. आपके जीवन में अलग अलग क्षेत्र में आपको लगता है जैसे मेरी उम्मीद है शायद परमेश्वर वैसा ही करेगा। Most of the time we pray with an expectation. अधिकतर समय एक उम्मीद रखकर हम प्रार्थना करते हैं, But when God does not do things according to our expectation, we are not very happy लेकिन about it. जब परमेश्वर हमारी उम्मीद के अनुसार वो काम नहीं करता तो हम परमेश्वर से चूक जाते हैं। They were literally sad to see the king is coming on a donkey. वो इस बात को देखकर सच में उदास हो गई कि हमारा राजा तो गधे पे सवार होकर आ रहा है, He's not coming on a horse. वो घोड़े पे नहीं आ रहा है। Hallelujah. Don't expect God. When we expect God to do something, we're telling God, you are not good enough, your mind is not working. I'm telling you what to do. You believe me. Don't believe your mind, God. जब हम परमेश्वर जो कर रहा है उसकी उम्मीद के अनुसार हम नहीं चल रहे तो परमेश्वर से हम यही कहना चाहते हैं, प्रभु आप उस काम को करने के योग्य नहीं हैं, आप मेरे दिमाग के अनुसार काम करें, अपने नहीं। No, God, you don't understand what kind of boy I need. परमेश्वर नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं मुझे लड़का कैसा चाहिए। I'm telling you, no. मैं आपको बता रही हूँ ना, Listen to me. मुझे सुनो। You don't understand what kind of job I need. किस तरीके की नौकरी मुझे चाहिए आप समझ नहीं रहे प्रभु। Let me tell you. मैं आपको बताता हूँ, This is the kind of job I need. ऐसी नौकरी चाहिए मुझे। I need money, but not from that person. पैसा मुझे चाहिए लेकिन उस व्यक्ति से नहीं चाहिए, From that person. उस वाले से चाहिए। Expectations उम्मीदें are dangerous. वो खतरनाक होती हैं, Because expectation क्योंकि उम्मीदें will destroy what God is sending. जो Something in your life. परमेश्वर आपके जीवन में भेज रहा है उसे खत्म कर देगी, बर्बाद कर देगी। You will reject आप इनकार कर देंगे what God is sending in your जो life. परमेश्वर आपके जीवन में भेज रहा है। How many are listening what I'm saying? आप में से कितने लोग सुन रहे जो मैं कह रहा हूं? आएगा, Expectation is लेकिन वो changing. गधे पर आया, उम्मीदें बदल गई, Their expectation is in problem. उनकी उम्मीदें उनकी ही परेशानी बन गई। Number 2, दूसरी बात, spiritual blindness is subtle. आत्मिक अंधापन बहुत ही खतरनाक है। They are hidden from your eyes, Jesus said. यीशु कहते हैं कि वो तुम्हारी आंखों से छुपा हुआ है। If you read first verse अगर आप पहले वचन को पढ़ेंगे इसमें, and you will read, second verse, 41, 42. 41 और 42 आयत को हम देखते हैं। जब Read वह that. निकट आया हाँ. तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, हाँ. परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। अब वो तेरी आंखों से क्या हो गई है? क्या हो गई है? छिप गई है। They are hidden from your eyes, Jesus said. यीशु ने कहा कि वो तो तेरी आंखों से छिप गई है। This is not a physical blindness, my people. मेरे प्रियो, ये एक शारीरिक अंधापन नहीं है, He is talking about a spiritual blindness. वो एक आत्मिक अंधेपन की बात यहाँ पर करता है। They could see Jesus, वो यीशु को देख सकते थे but they did not understand Jesus. लेकिन वो यीशु को समझ नहीं पाए। They heard his word, उसकी आवाज को, उसके शब्द को तो सुना उन्होंने, but they did not receive him. लेकिन उसका स्वागत, उसको अपनाया नहीं उन्होंने। Let me tell you something very simply. मुझे आपको बिल्कुल साधारण तौर पर बताने दीजिए, Blindness is not when you cannot see. अंधापन तब नहीं होता जब आप देख नहीं सकते। Jesus is not talking about physical blindness. यीशु मसीह शारीरिक अंधेपन की बात नहीं कर रहा है। There are two kinds of blindness. दो प्रकार का अंधापन होता है। Number one is a physical blindness, सबसे पहला शारीरिक अंधापन, where you cannot see. जहां पर आप देख नहीं सकते। But what is the heart blindness? लेकिन दिल का अंधापन क्या है? The heart blindness is और मन का, दिल का अंधापन क्या होता है? you can see, आप देख तो सकते हैं but you do not understand. लेकिन आप समझते नहीं हैं।
You see what is happening, जो हो रहा है आप वो देख रहे हैं, but you don't understand. लेकिन आप समझ नहीं पा रही। So these people, they had teachings, तो ये लोगों के पास सिखावा था, they had miracles, उनके पास अद्भुत काम उन्होंने देखे they थे, had opportunities, मौके थे उनके पास, but there is no response. लेकिन कोई प्रत्युत्तर उन्होंने नहीं दिया। So what I want to tell you is, तो जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, when you keep hearing and don't respond, जब आप सुनते रहते हैं लेकिन प्रत्युत्तर नहीं देते, your heart will slowly become dull. आपका दिल धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा और अंधा होने लग जाएगा। And one day, और एक दिन when God will move, जब परमेश्वर चलेगा, you will feel nothing. आप कुछ भी महसूस नहीं करेंगे। It's a tragedy with some people. कुछ लोगों के साथ ये एक दुखद घटना है। God is moving. परमेश्वर चल रहा है, There is a full of presence of God. उपस्थिति की भरपूरी है प्रभु की, Anointing upon everyone. अभिषेक है हर किसी के ऊपर। And some dry people, you don't feel anything. और कुछ सूखे लोग कुछ भी महसूस नहीं करते। Why? क्यों? Slowly you become dull when you don't respond to God's word. धीरे धीरे आप धीमा हो जाते हैं जब आप परमेश्वर के वचन का प्रत्युत्तर नहीं देते। Please come back. कृपया वापस आइए। Now, third point. अब तीसरी बात, Some moments don't come back. कुछ क्षण कभी वापस नहीं आते। Let's read the last verse, 44th verse, आइए 44 वचन की आखिरी बात को पढ़े। and read that. Yeah. क्योंकि तूने उस अवसर को हाँ। जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई हाँ। ना पहचाना। बोलिए ना पहचाना। ना पहचाना। बोलिए तूने उस अवसर को ना पहचाना। तूने उस अवसर को ना पहचाना। Are you with me? क्या आप मेरे साथ में हैं? Hallelujah. हालेलुया। सोने वाले बोले हालेलुया। The time of your visitation, says the Lord. प्रभु कहता है तेरे मुलाकात का समय। This visitation means a special moment when God comes near. ये मुलाकात का समय खास समय है जब परमेश्वर हमारे नजदीक आता है। Listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान से इस बात Not को। every moment is the same. हर एक क्षण एक जैसा नहीं होता है। Some moments are special. कुछ क्षण बहुत विशेष और खास होते हैं। Some moments are powerful. कुछ क्षण सामर्थी होते हैं। Some moments are time sensitive. और कुछ क्षण कुछ समय के लिए ही आते हैं। And here is the truth. और यहाँ पर ये सच्चाई है। You cannot delay that moment forever. और आप उस क्षण को विलंब हमेशा के लिए नहीं कर सकते। Jerusalem thought we will deal with this later. यरूशलेम के लोगों को लगा कि इस बात से बाद में निपट लेंगे। But later never came. लेकिन कल कभी नहीं आया। When God gives you a moment, जब परमेश्वर आपको एक क्षण देता है, एक अवसर देता है, you must respond in that moment. आपको उस क्षण में उसका प्रत्युत्तर देना अवश्य है। We call it a kairos moment. और हम इसे कहते हैं कायरोस मोमेंट। A time specially designed for you. एक वो क्षण जो खास रीति से आपके लिए परमेश्वर ने रचा है। Why are you here? आप क्यों यहाँ पर हैं? Why are you in the church आप today? क्यों कलीसिया में आज हैं? Because God called you one day. क्योंकि एक दिन था जब परमेश्वर ने आपको बुलाया था। God changed your heart one day. एक दिन परमेश्वर ने आपके दिल को बदला था। That was your kairos moment. वही आपका कायरोस क्षण था। The kairos moment is a time when God intervene in the earth time and he makes his presence very visible. कायरोस क्षण वो क्षण होता है जब परमेश्वर अपनी उपस्थिति पृथ्वी के समय में लेकर आता है और वो क्षण एक खास क्षण बन जाता है। Listen, listen, सुनिए listen. सुनिए ध्यान से। You can go and check on Google. आप गूगल पर चेक कर सकते हैं The इसे। time of the earth is called chronos. पृथ्वी के समय को क्रोनोस बोला जाता है। Chronos is the time that we are right now. It is 1:30 or 1:25 chronos. और एक जो पृथ्वी का समय है उसे क्रोनोस बोला जाता है, जो कि अभी 1:25-1:30 हो रहे हैं। But time of God is called kairos. लेकिन परमेश्वर के समय को कायरोस बोला जाता है। So what happened? तो क्या होता है? Listen what happened in the life of Paul. सुनिए पौलुस के जीवन में क्या हुआ। Paul was Saul. पौलुस शाऊल था पहले। He used to persecute God's people. वो परमेश्वर के लोगों को सताया करता था। On one day he was going on the road of Damascus. और एक दिन वो दमिश्क की सड़क पर जा रहा था। Just normal time. बिल्कुल एक साधारण समय था। All of a sudden लेकिन अचानक से he heard a voice. उसने एक आवाज सुनी। A great light came on him. एक बड़ी ज्योति प्रकाश उसके ऊपर चमकने लग गई। And the voice said, और उस आवाज ने कहा, Oh Saul, why are you हे persecuting शाऊल, me? हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? What was that? वो क्या था? It was a kairos moment. वो एक कायरोस क्षण था। When God entered in that earth time. जब परमेश्वर अपने इस पृथ्वी के समय में आ गया।
Hallelujah. हालेलुया। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? You may be working. आप काम कर रहे हो सकते You हैं। may be at work. आप काम की जगह पर हो You सकते may be in हैं। your bedroom. हो सकता है बेडरूम में आप हो। You may be walking on the हो road. सकता है सड़क पर आप चल रहे And हो all of a sudden, और अचानक से there is anointing on you. आपके ऊपर अभिषेक उतर All आएगा। of a sudden, अचानक से The Holy Spirit started पवित्र talking to आत्मा you. आपके कानों में बात करने लग जाएगा। Why? क्यों? Kairos moment. क्योंकि वो कायरोस क्षण है God wants to आपका। talk to you. परमेश्वर उस समय में आपसे बात करना चाहता है। This fasting prayer, ये उपवास प्रार्थनाएं let it be a Kairos होने moment. दीजिए। ये कायरोस क्षण बन जाए The आपके Kairos लिए moment will change you. और ये कायरोस क्षण ही आपको बदलेगा। The Kairos moment will change your personality. कायरोस क्षण आपके व्यक्तित्व को बदल देगा। What happened with Moses on Mount Sinai? मूसा के साथ क्या हुआ वो सिनाई पर्वत पे? That was his Kairos वो moment. उसका कायरोस क्षण था। God changed Moses completely. परमेश्वर ने मूसा को पूरी रीति से बदल दिया। Come on, somebody. क्या कोई सुन रहा है? Hallelujah. हालेलुया। Number 4. चौथी बात, Jesus was weeping for what they missed. तो यीशु उस बात के लिए रो रहे थे जो उन्होंने खो दी थी। Jesus wept, Bible says there. बाइबल कहती है कि यीशु वहां उसने विलाप किया, वो This is रोया। powerful. ये सामर्थ्य है। Jesus was not crying for himself. यीशु अपने लिए नहीं रो रहा था, He was crying for them वो उनके लिए रो रहा था। because he could see what they could have become. क्योंकि वो देख सकता था कि वो क्या बन गए हैं, What they could have become. वो क्या बन सकते वो हैं. क्या बन सकते हैं What they were able to lose. और वो क्या खो सकते हैं। The opportunity they were missing right वो now. अवसर जो उसी क्षण वो खो रहे थे, They were very close to Jesus, वो यीशु के बहुत ही नजदीक थे, but still very far. लेकिन तब भी बहुत दूर थे। Some people are in the church, कुछ लोग कलीसिया में हैं, but they're still not in the church. लेकिन फिर भी वो कलीसिया में नहीं है। That is what happening with these people. यही हो रहा है इन लोगों के साथ भी। They see Jesus in front of them, यीशु को अपने सामने वो देख रहे हैं and Jesus is crying. और यीशु मसीह रो रहा है। Sometimes you are in prayer, कई बार आप प्रार्थना में हैं, but you are not in prayer. लेकिन आप प्रार्थना में है नहीं वास्तविक में। Sometimes you are fasting, कई बार आप वो उपवास आपने लिया हुआ है, but you are not in real fasting. लेकिन आप असली उपवास में नहीं हैं, Close to His presence, उसकी उपस्थिति के नजदीक, but far from the understanding. लेकिन उसकी समझ से दूर। What is happening with these people? इन लोगों के साथ क्या हो रहा है? People of Jerusalem, they had temple, यरूशलेम के लोगों के पास मंदिर था, they had आराधनालय था, scriptures, उनके पास किताबें थी व्यवस्था की, they had tradition, उनके पास रीति रिवाज थे, but they lost sensitivity. लेकिन संवेदनशीलता को उन्होंने खो दिया था। When you become too familiar with God, जब परमेश्वर से ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा परिचित आप हो जाते हैं, you stop recognizing Him. आप उसे खुद पहचानना ही बंद कर देते हैं। आपको बताना चाहूंगा, खुदा से सबसे दूर कौन होता है? काजी, पादरी और पंडित। आप बोले सबसे पास ही? नहीं नहीं, वो रात दिन वहीं रहते हैं। आप लीडर हो सकते हैं, आप जितना खुदा के काम के नजदीक होंगे, आप उतना ही उससे बहुत दूर हो सकते हैं। The more you're working for God, the more you will be away from Him. यीशु ये कर सकता था, इसीलिए उसने एक काम किया रेगुलर। उसने सिर्फ पिता का काम नहीं किया, उसने पिता से प्रार्थनाएं की, प्रार्थनाएं की, प्रार्थनाएं Jesus की। did not only do प्रार्थनाएं की। Father's work, but He prayed. ये संदेश आज हमारे लिए This है। is not only for Jerusalem. ये केवल यरूशलेम के लिए नहीं है। Today we have a church, आज हमारे पास कलीसिया है, we have a worship, हमारे पास आराधना we है, have teaching, हमारे पास सिखावा है, but the real question is, लेकिन असली सवाल ये है, do we recognize when God is moving? जब परमेश्वर चल रहा है तब क्या हम उसे पहचान रहे हैं? एक ही सवाल है, when God is moving, जब can I परमेश्वर चल रहा है recognize? क्या मैं उसे पहचान रहा हूँ? Can I honor God that God is moving? क्या मैं परमेश्वर का आदर कर सकता हूँ कि परमेश्वर चल रहा है उस Are you जगह पे? listening, church? Hello. क्या आप सुन रहे हैं कलीसिया? We can attend services, हम सभाओं को we अटेंड कर can सकते sing हैं, songs. हम गाने गीत गा So सकते this हैं। is your moment. सो यही आपका क्षण है। I believe this very strongly. मुझे विश्वास है, ये अपने अंदर पूरे विश्वास के साथ, God is visiting people right now. परमेश्वर इस समय लोगों से मिल रहा है।
God is going to speak to you, परमेश्वर आपसे बात करने वाला है, call you, आपको बुलाने निमंत्रण and देने stir वाला your है hearts. और आपके दिलों को झंझोड़ने वाला है। but the question is, लेकिन सवाल ये है, will you recognize him क्या आप उसे पहचानेंगे or will you miss him? या फिर आप उससे चूक जाएंगे? God has been speaking to you परमेश्वर आपसे अभी तक बात करते आया in है, prayer, in worship, प्रार्थनाओं में, आराधनाओं में in quiet moments. और शांत और खामोशी के समय Don't में। delay. आप विलंब ना करें। God is moving and saying, परमेश्वर चल रहा है और कह रहा है, don't delay. विलंब ना करो। Listen this one last thing. इसे सुनिए इस आखिरी बात I'm को, going to finish my और message. यहाँ पर मैं अपने संदेश को समाप्त कर They दूंगा। missed Jesus not because he was not there, वो यीशु से इसलिए नहीं चूक गए क्योंकि वो वहां पर नहीं था, but because they were expecting something else. लेकिन इसलिए क्योंकि उनकी उम्मीद ही कुछ और थी। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Allow God to work in your life. अनुमति दे परमेश्वर की आपके जीवन में वो काम करे। Don't tell God, do it in my way. परमेश्वर को ये ना कहे कि प्रभु मेरे तरीके से करो, Do it the way I like it. जैसे मुझे पसंद है वैसे करो, Do it the way I expect it. जैसे मेरी उम्मीद है वैसे करो। You should surrender to God आपको परमेश्वर के प्रति समर्पण करना and you चाहिए should ask और God, परमेश्वर से ही कहना चाहिए, do it the way you want to do प्रभु it. जैसे आप चाहते हैं आप वैसा Let करें, your will be done, आपकी इच्छा पूरी हो, not my will. मेरी इच्छा नहीं, Let your way, आपके तरीके से हो, Lord, your way, आपके तरीके से not हो, my way. मेरे तरीके से नहीं। I am ready to fulfill your मैं will, Lord. तैयार हूँ आपकी इच्छा को I am पूरा ready करने to के लिए do what प्रभु। you want me to जो do. आप चाहते हैं मुझे करने के लिए मैं वो करने के लिए तैयार I'm हूँ। not going to tell you what exactly I am expecting, Lord. मैं प्रभु आपको नहीं बताने वाला कि मेरी उम्मीदें क्या है प्रभु, But I believe what you will do will be great. लेकिन मेरा ये विश्वास है कि जो आप करेंगे वो सबसे उत्तम और बढ़िया होगा। What you will give is best. जो आप देंगे वो सबसे अच्छा होगा। My job is to surrender to मेरा your will. काम है आपकी इच्छा के प्रति समर्पण करना। I will surrender at your मैं feet. समर्पण करूंगा I आपके will चरणों surrender में। to your will. आपकी इच्छा के प्रति And I समर्पण will let your करूंगा will be done. और मैं कहूंगा कि आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। One last thing I want to tell एक you. आखिरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, Spiritually, godly people are not the one who are doing and busy in activity. आत्मिक और ईश्वरीय लोग वो नहीं होते जो अपने काम और उसके कामों में व्यस्त हों। Godly people are the one who spend time in prayer. ईश्वरीय लोग वो होते हैं जो प्रार्थना में समय बिताते हैं। Start spending time in prayer. प्रार्थना में समय बिताना शुरू करें। If you are not spending in time अगर prayer, आप प्रार्थना में समय नहीं बिता रहे you cannot lead a godly life. तो आप एक ईश्वरीय जीवन में नहीं चल सकते। Coming to church will not give us a godly कलीसिया में life. आना हमसे हमें ईश्वरीय जीवन नहीं मिलने वाला, But sitting alone in the लेकिन prayer, केवल प्रार्थना में बैठ के ही sitting at Master's feet स्वामी के चरणों में बैठ के will give you a godly life. उसके द्वारा ही हमें ईश्वरीय जीवन मिलेगा। Hallelujah.